Good morning, everyone. Welcome to WowWire. So before we start our editorial session, this is our Telegram channel. If you want, you can join this Telegram channel. Okay, here we are providing daily notes of editorial, and also we will be providing you Vision monthly magazine summaries, and later on we'll be providing you prelims test series summaries of Vision and prelims PT 365 summaries. Also, we'll be providing you mains test series summaries and mains 365 summaries. So those things will be very helpful for you because we'll be reducing the number of words to almost like 60%, but keeping the content intact. Okay, so in long run that will help you in your preparation. So please join our channel. Okay, चलिए आज का सेशन देख लेते हैं. So basically in today's session there is nothing much. See, I don't want to waste your time, guys. So those who want to skip today's session, that is 27th of October, they can skip today's session. Okay, it will hardly take 3-4 minutes, I think, to cover it completely. Okay, colonialism and its discontent today. अब इसमें देखिए इन्होंने सिर्फ बात की है कि जो प्रेजेंट इंग्लिश को हटाने की बात हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत मैकेले के बारे में पासिंग रेफरेंस दे दिया, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ फैक्चुअल टेक अवे नहीं है, ना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कवर नहीं करेंगे. द जॉब एंड द मैन. अब जो ऋषि सुनाक है वो पीएम बन गए हैं. आपको यूके की प्रॉब्लम्स पता ही है, हाई इन्फ्लेशन है वहां का, एनर्जी क्राइसिस है वहां पर, बिल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, बजट डेफिसिट है ऑलमोस्ट $45 बिलियन का. तो ये सारे इश्यूज जो हैं इनको बस बोला है इसमें, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें. सो इट इज ऑफ नो यूज. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. मेकिंग सेंस ऑफ एन आउटरीच टू पसमंदा मुस्लिम. अब बेसिकली क्या है कि मोदी जी ने जो है स्पेसिफिक रेफरेंस दिया है पसमंदा मुस्लिम्स का कि ये थोड़े बैकवर्ड और ये वो, तो लोगों का ये कहना है कि ये जो है मुस्लिम्स में जो है फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू डिवाइड मुस्लिम कम्युनिटी टू गेट अ वोट बैंक आउट ऑफ देम इन यूपी. But the thing is like even though Muslims were not even though Muslims were not voting to for BJP in UP, they have won in UP with clear majority. So after that they have discussed about this Pasmanda Muslim community, that how backward they are and all those things, and then they have related it to Sabka Saath Sabka Vishwas. Okay, सबका साथ सबका विकास, सॉरी गाइस, ठीक है. अब लास्ट जो है वो है an unkind hike amid sticky inflation, small saving rates should have been pegged higher. अब देखिए इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आज कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं गाइस, बिकॉज इट्स ऑफ नॉट मच यूज. ठीक है, अब बेसिकली किया क्या है कि गवर्नमेंट जो सेविंग रेट्स के जो है उन्होंने थोड़े से जो रेट्स हैं उनको हाइक कर दिया 0.1 से 0.3%, लेकिन इसमें भी जो पीपीएफ है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है इनके रेट जो है हाइक नहीं किए. अब देखिए रेट हाइक क्यों इंपॉर्टेंट है. Inflation is rising. If inflation is rising, a rate of interest in those instruments where public is investing its money for longer run, like PPF में minimum 15 years है, there the interest should be able to beat inflation. Otherwise, there will be no point of putting parking money in PPFs. After a year, suppose you have 1 lakh rupees and it becomes 95,000. What is the point of putting it in these instruments? And that too, you have a lock-in period of more than 10 years. Okay. So on paper, return on these instruments are to be reset on the market determined basis with a spread of 0 to 100 basis points. 1 basis point equals to 0.01% over the yield of government securities. बेसिकली जो कंपेरेबल मैच्योरिटी होती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके बेसिस पे इसको वो करते हैं. अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उनका यील्ड कैसे मैनेज होगा, रेट्स के हिसाब से, जो कि आरबीआई डिफाइन करता है इन इट्स एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. ठीक है, दैट दिस हैज नॉट बीन अडहेयर टू is evident from a cursory glance given a long pause between the rate change. अब देखिए होना तो ये चाहिए ऑन पेपर, लेकिन ये हो नहीं रहा है, बहुत ज्यादा टाइम तक जो है चेंज नहीं होते हैं रेट्स. ओके, फॉलोइंग इंटरेस्ट हाइक्स दिस ईयर टू कर्ब इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड्स हैव बीन शूटिंग अप. क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इनका भी यील्ड बढ़ रहा है सिक्योरिटीज का. दिस मंथ आरबीआई सेड दैट इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड ऑन वेरियस स्कीम्स, he is talking about these saving schemes, in the current quarter are
44 to 77 बेसिस पॉइंट बिलो द फॉर्मूला इम्प्लाइड रेट, मतलब जो फॉर्मूला के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए उससे 0.44% से लेकर के 0.71% तक कम दिया जा रहा है इंटरेस्ट। पीपीएफ में बोला है कि 7.72% होना चाहिए, जहां की 7.1% दे रहे हो, ठीक है। इट इज नोट वर्दी दैट सेंट्रल बैंक विच यूजुअली पब्लिशेस फॉर्मूला बेस्ड स्मॉल सेविंग रेट्स एवरी मंथ और टू हैड नॉट स्पेल्ट देम आउट फ्रॉम मे टू सितंबर। मे टू सितंबर कुछ बताया ही नहीं उन्होंने, बस नोट किया था अगस्त में, ठीक है। अब देखिए, अब हाउस होल्ड हैं, फॉर हाउस होल्ड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 6%, कुछ टाइम के लिए 7% भी गया था। दिस मीगर हाइक्स, क्या 0.01% की हाइक जो है 0.01 से 0.03%, जबकि कितना होना चाहिए 0.44 से 0.71, ठीक है, आर फार फ्रॉम इनफ टू लिफ्ट सेंटिमेंट। Bear in mind that this was the first change in these schemes rate in 27 months after a sharp cut। देखिए, जब कट करने का टाइम था 0.5 और 1.4% कट किया, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो था कम हो रहा था, ये अप्रैल 2020 में किया था। अब जो है इन्होंने पॉलिटिक्स बताई इसमें, that political consideration still determine the trajectory of small savers nest egg size can be gauged by few recent occasions when rate changed or rolled back, ठीक है। अब देखिए, पहली चीज, लास्ट टाइम रेट्स वर हाइक इन जनवरी 19, रेट्स बढ़ाए गए थे, क्यों? क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आने वाला था। देन मार्च 2021 में गवर्नमेंट अनाउंस फर्दर कट्स, कम करना था कि 0.4 और 1.2, लेकिन इट वाज रोल्ड बैक और विड्रू ओवरनाइट, क्यों? साइटिंग एंड ओवरसाइड अमिड अ पोल कैंपेन इन 5 स्टेट्स, ठीक है। रेट्स बढ़ाएंगे कब? जब इलेक्शन आना होगा। अगर हमने जो है इलेक्शन के पहले कहीं पर रेट कट कर दिया तो उसको रोल बैक कर लेंगे कि नहीं नहीं इलेक्शन है, गलत सेंटिमेंट जाएंगे। However, even as a token of gesture to voters in upcoming polls, this latest tweak in small saving rates does not make the cut, ठीक है। अब ये रेशन जो आपने थोड़ा बहुत बढ़ाया उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए, एक कॉशियस साइन दिया आरबीआई ने, आरबीआई टॉप ब्रास वार्नड अर्लियर negative returns have serious consequences for the economy if households which are the biggest lenders, see we are the biggest lender, saving bank account में हमारा सारा पैसा रहता है, stop parking their savings in such fixed income instrument, जहां पर गवर्नमेंट को ये पता है कि 10 साल तक पैसा जो है इनके पास ही रहेगा। अब वहां पर अगर आप इंटरेस्ट देना बंद कर दोगे पब्लिक को, तो इफ दे विल स्टॉप पार्किंग देयर मनी इन दोज इंस्ट्रूमेंट, सपोज कीजिए गोल्ड ले लेगी और घर पे रख लेगी वो पैसा, या फिर म्यूचुअल फंड्स ले लेगी, ठीक है, और जो है कंपनीज के पास चला जाएगा वो पैसा। तो गवर्नमेंट के पास स्पेंडिंग के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। द नेक्स्ट क्वार्टर शुड बी अ फेयरर एंड हेल्थियर रीसेट ऑफ रिटर्न्स टू निगेट इन्फ्लेशन डेंट ऑन हाउस होल्ड सेविंग्स। चलिए गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसलिए इसके नोट्स प्रोवाइड नहीं किए गए। इफ यू वांट यू कैन मेक अ नोट आउट ऑफ दिस सेशन। कल फिर मिलेंगे।